So we will be continuing with this question. Which of the following is a basic amino acid? Okay. Jayant, read the options. Serine, alanine, tyrosine, lysine. How many amino acids are there, Mayuresh? 20 amino acids are there. Out of this 20, only 3 are basic amino acids. कम से कम वो तो पढ़ सकते हैं. 20 का नाम पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. You can study the 3 amino acids which are basic. Okay. The basic amino acids है histidine. Note down. Arginine, lysine. Okay, histidine, arginine, lysine. Arginine and lysine most probably हमारा bio students they know very well because it is a part of histone octamer, right? Histone is basic due to the presence of arginine and lysine residues in them. Okay. Anyway, these are the 3 amino acids which are basic amino acids. इसको याद कैसे करोगे? Histidine को हम H single letter coding for amino acid have single letter representation and they have 3-letter representation also. I'm not saying about the codon. Codon अलग रहेगा. 3-letter representation रहता है, single letter representation भी रहता है. For example, histidine को H triple letter में बोल रहा है तो his बोल सकते हैं. इसी तरह so majority of the amino acid की first 3 letters को triple letter code 3-letter representation समझते हैं. For example, अगर फाल्गुनी is an amino acid, FAL will be the triple letter representation and single letter representation most probably the first letter ही रहेगा. Okay. Now arginine को हम R दे दिया है single letter में. A क्यों नहीं दिया? Because A is representing alanine. Already एक amino acid को A दे चुका है तो arginine को भी A दे नहीं सकते तो इसलिए हम R दे दिया. 20 amino acids are there, 26 alphabets are there, तो सबको एक एक alphabet तो देना ही पड़ेगा. So इसी तरह यहाँ पे R आया. Lysine, actually L we can't give L because L is standing for leucine. LEUCINE, leucine को already दे चुका है L. So फिर lysine को L दे नहीं सकते, हम K देना पड़ेगा. Okay. So HRK is the code. ऋतिक रोशन को याद रखो तो basic amino acids are HRK. And acidic amino acid भी पढ़ा तो अच्छा रहेगा फिर. Acidic amino acids are only 2 जिसके नाम की end पे acid आते हैं. There are only 2 amino acids जो acid word में end होते हैं. They are aspartic acid, glutamic acid. Okay. इसको E letter और D alphabets E और D से हम represent करते हैं. But anyway, you can remember it like this only. Acid end हो रहा है. Single letter याद करके उससे remember करने का तो जरूरत ही नहीं है. नाम में an acid है only for 2 acids, amino acids. Now, on the light of this idea, answer this question, Mayuresh. Which of the following is a basic amino acid? Lysine is the basic amino acid. तो बाकी सब क्या है? Neutral. Very good. Acidic नहीं तो anyway. So then that will be neutral amino acid. Now, what is the difference between acidic, basic and neutral amino acid? Amino acid की general structure आता है ना. So इसके answer एक बार देखते हैं. See, this is lysine. Lysine की structure देखो इतना लंबा structure. First of all, general representation बताओ एक amino acid का. Carbon, 4 valency. One side it is COOH group. Another side it is NH2 groups. Then 1 hydrogen and नीचे R group. Lysine की R group इतना बड़ा है. CH2, 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 NH2. देखो. Okay. तो lysine को normally कैसे represent करना पड़ेगा? COOH H NH2 CH2 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 again CH2 and finally क्या आ रहे? NH2 आ रहे उससे.
मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखा इतना लंबा स्ट्रक्चर है. सो यू कैन सी दिस इज द अल्फा कार्बन. ओके, this will be the beta carbon, this will be gamma, delta, epsilon. ग्रीक अल्फाबेट एबीसीडी जो होता है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, सबसे लास्ट उसको ओमेगा माना जाता है. तो अभी तो एप्सिलॉन तक खत्म हो रहा है. यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन इज दिस. व्हाई इट इज अल्फा कार्बन? मेन फंक्शनल ग्रुप सीओएच है, उससे अटैच किया हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलना पड़ेगा. Then this will be beta, this will be gamma, this will be delta, this will be epsilon. epsilon कार्बन में और एक अमीनो ग्रुप आ रहे हैं. तब इसकी साइड चेन, ये आर ग्रुप को क्या बोलते हैं? साइड चेन बोलते हैं. साइड चेन में क्या रहता है? देयर इज वन मोर अमीनो ग्रुप. ऑलरेडी एक अमीनो ग्रुप है कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास. अभी देखो एप्सिलॉन कार्बन के पास दूसरा अमीनो ग्रुप आ गया. The total number of amino groups will become 2 here. So there is a disproportionation here. You can see the proportionality same नहीं हो रहा है. 1 COOH और 2 NH2 group. तो basic वाला portion ज्यादा है, because I told you that NH2 is a basic group. Acidic group एक ही है COOH. Basic group दो है, कौन कहाँ कहाँ? NH2, ये वाला NH2. समझा? ऐसे दो NH2 है तो then it will become basic one. तो न्यूट्रल का कैसा रहेगा? साइड चेन में NH2 भी नहीं रहेगा, COH भी नहीं रहेगा. ओनली जो मेन चेन में NH2 और COH है उससे वो हाफी है. सो 1 COH एंड NH2 इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड COH है तो फिर न्यूट्रल ही रहेगा. तो एसिडिक अमीनो एसिड कैसे दिखता है? साइड चेन में COH आ सकता है. तो अमीनो एसिड की ओवरऑल आइडिया मिला ना, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल. वेरी गुड. ये नोट डाउन किया. सेरीन का स्ट्रक्चर, लाइसिन का स्ट्रक्चर नोट डाउन किया. एप्सिलॉन कार्बन में NH2. एक बार लाइसिन का स्ट्रक्चर नोट डाउन करो. डन. ओके. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग तो हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है. मेजोरिटी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम में मैच द फॉलोइंग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो होता ही है. तो इट इज इजी. वी कैन गो फॉर एलिमिनेशन मेथड आल्सो. एटलीस्ट टू तो पता चलना चाहिए. बताओ. ग्लूकोज प्लस HI. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सी ऑप्शन. कल पढ़ा ना फाल्गुनी? टेल मी, ग्लूकोज प्लस HI इसमें से क्या बनता है? एन हेक्सेन. सो ये बराबर से मैच किया है. C3 3 ऑप्शंस आर देयर. तो ये तो एलिमिनेट किया हमने. ठीक है. नाउ ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. हाँ, तो एक ही जगह पे COH, ग्लूकोनिक एसिड है ना. वेरी गुड. मतलब 1 में आया. सो D1, हाँ अभी तो मिला होगा ना. दिस इज द आंसर. देखो C3 D1 मिनिमम 2 पता चलना चाहिए. तो बाकी देखो ग्लूकोज प्लस HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो क्या रहेगा? सकारिक एसिड एंड वाटर रहेगा. फोर्थ ऑप्शन B4. फिर 1 2 रहेगा. देखो दिस इज शोइंग नो रिएक्शन. कैन एनीवन से व्हाई सोडियम बाइकार्बोनेट ग्लूकोज में डाला तो रिएक्शन नहीं दिखाते? You have studied this in aldehyde ketone carboxylic acid. Test to distinguish between carboxylic acid. Only carboxylic acid का ही रिएक्शन है ना, बाइकार्बोनेट टेस्ट. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी हम वो किया है, बाइकार्बोनेट की कंफर्मेटरी टेस्ट. कार्बोक्सिलिक एसिड की टेस्ट है बाइकार्बोनेट टेस्ट. ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं पढ़ा है? एनीवे अभी पढ़ो. COH ग्रुप है क्या, वो टेस्ट करने के लिए है NaCO3. ग्लूकोज में किधर है COH ग्रुप? ग्लूकोज में ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, मिडिल में 4 असिमेट्रिक कार्बन है, जिसकी लेफ्ट और राइट में H और OH आ रहे हैं. तो उसमें COH तो नहीं है, तो NaHCO3 के साथ उसको रिएक्शन नहीं होता है. सो नो रिएक्शन. ओके. तो ये से अस्यूम कर सकते हैं. बाकी चैप्टर्स पढ़ा तो इससे कोरिलेट भी कर सकते हैं. समझा? सो द आंसर इज, ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए. NaHCO3 के साथ नो रिएक्शन, HNO3 के साथ सकारिक एसिड,
HI के साथ n हेक्सेन, Br2 के साथ ग्लूकोनिक एसिड। हमने बार बार डिस्कस किया है, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is incorrect? Not correct पूछ रहे हैं। Ovalbumin is a simple food reserve in egg white. Ovalbumin is a simple food reserve in egg white. Egg is actually ovum, that you know. Even human egg को भी ovum बोल सकते हैं, hen की egg को भी क्या बोल सकते हैं, ovum बोल सकते हैं। ovum की जो liquid portion है, that is albumin. ovum के अंदर जो liquid portion है, that protein का नाम क्या है, albumin. So that is true. The statement is correct. Ovalbumin is a simple food reserve in egg white. Very clear? Second, blood proteins, thrombin and fibrinogen are involved in blood clotting. बिल्कुल सही है। ब्लड की प्रोटीन से फाइब्रिनोजन, एक्चुअली 3 प्रोटीन्स आर देयर इन प्लाज्मा। एल्बुमिन, ये एग वाइट का प्रोटीन भी है ब्लड में, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। इसमें वो तीसरा फाइब्रिनोजन बोला ना, दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। So if a small cut or wound occurs in our body, that blood is not going to flow continuously. It is going to cease. The blood flow is going to cease and blood is getting coagulated at the site of wound. This coagulation is because of fibrinogen. ये तो सही बोल रहे हैं। And not only fibrinogen, there are 13 blood clotting factors. उसमें से एक है thrombin, prothrombin, calcium, बहुत सारे factors रहता है blood में। तो ये सब मिला के क्या हो रहा है, blood clotting हो रहा है। So this statement is actually true. Bio students can more relate to this answer because ये तो क्या है, blood clotting is a main topic in that cardiovascular system. So anyway, this statement is correct. याद रखो, blood की proteins जैसे thrombin and fibrinogen होता है वो clotting के लिए मदद करते हैं। And hope you have a general knowledge कौन सा blood cell clotting के लिए मदद करते हैं। white blood cell नहीं, प्लेटलेट, प्लेटलेट के साथ ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो वी कांट से इट एज इनकरेक्ट। नाउ, डीनेचुरेशन मेक्स प्रोटीन्स मोर एक्टिव। ये कैसा स्टेटमेंट बोला, डीनेचुरेशन से एक्टिव कब हो गया? डीनेचुरेशन से उसका नेटिव स्ट्रक्चर लॉस हो रहा है एंड उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिमेनिंग इंटैक्ट, तो उसका फंक्शन तो लॉस हो चुका है। अगर एक प्रोटीन टर्शरी में फंक्शनल है, हम उसको डीनेचर किया तो टर्शरी में फंक्शनल है, टर्शरी तो लॉस हो गया, तो फिर कैसे फंक्शनल होगा? सो डीनेचुरेशन विल मेक द प्रोटीन इनएक्टिव। सो दिस इज एक्चुअली द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, दैट मींस दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट सही है, इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देयर आर 2 हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन दिस। इसी चैप्टर में एक्चुअली हार्मोन्स के बारे में भी बोल रहा है। यू हैव टू स्टडी अबाउट 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय whom? इंसुलिन। सो इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो हमारा ब्लड की ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, ब्लड की ग्लूकोज की लेवल को कम कराते हैं। So that blood की जो ग्लूकोज है that is converted into glycogen and stored in liver, brain and muscle cells. ये cells भी पूछ सकते हैं। So ऐसे cells में क्या करते हैं, डिपोजिट होता है ग्लाइकोजन, एंड अगर जरूरत पड़ा तो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। इमेजिन दैट यू आर टेकिंग फास्टिंग, ओके, और यू आर डिप्राइव्ड ऑफ ब्लड शुगर क्विकली, तो ब्लड में शुगर तो होना चाहिए। ओके, सो दैट ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस रिवर्स कन्वर्शन इज caused by another hormone called the glucagon. लिटिल बिट टंग ट्विस्टर की तरह लगेगा, ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन, ग्लूकोज, समझा? सो इंसुलिन पढ़ो, ग्लूकागॉन उसका ऑपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है, वैसे याद रखो। एंड ये दोनों हार्मोन कौन सा ग्लैंड बनाते हैं फाल्गुनी? व्हिच ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन? नीट में ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? आइलेट्स ऑफ लांगरहान कौन सा ग्लैंड में है? पानक्रियास, पानक्रियास बनाते हैं। पानक्रियास की आइलेट्स ऑफ लांगरहान की अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। क्लियर? तो वो बायो पार्ट भी हमने कवर किया। तो यहाँ पे आप देखो, आंसर इज डीनेचुरेशन चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, इट मेक्स द प्रोटीन इनएक्टिव, मतलब लॉस इट्स एक्टिविटी, इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं करते हैं, मेक्स प्रोटीन इनएक्टिव। वेरी इजी, राइट?
तो ये याद रख सकते हैं, कल हमने डीनेचुरेशन के बारे में लिखा था, आई थिंक सो. So anyway, you have it in mind, right? Denaturation makes the protein inactive. लिख के रखो, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे. Now, sugar, which does not give reddish brown precipitate with a Felling's reagent. पहले ये बताओ, आल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में हमने दो इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ा है. एक का नाम फेलिंग्स टेस्ट, दूसरे का नाम टॉलरेंस टेस्ट. फेलिंग्स टेस्ट में फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी. क्या है फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी? वो टॉलरेंस रिएजेंट है ना. फेलिंग सॉल्यूशन, हाँ, हमारा ये कॉपर सल्फेट. ओके, सो if we are adding filling solution A and B, then what happen? Aldehyde groups को क्या होता है? It getting reduced, so we'll get a brown precipitate. तो aldehyde है तो reddish brown precipitate होता है. तो ऐसे याद रखो, aldehyde है तो क्या होता है? Felling's test पॉजिटिव, टॉलरेंस टेस्ट भी पॉजिटिव होता है ना. टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट डाला तो AgNO3 बोला ना, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट वो डाला तो देन इट विल फॉर्म ए ब्राइट सिल्वर मिरर. मिरर फॉर्म होगा टेस्ट ट्यूब में. तो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रहेगा. सो आल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट भी पॉजिटिव करते हैं, टॉलरेंस टेस्ट भी पॉजिटिव करते हैं. And you know, sugars have aldehyde group in them. फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप तो क्या ही रहता है? CHO ही रहता है. इवन दो एक CHO हो के भी ये फेलिंग्स टेस्ट नेगेटिव होता है. वन शुगर अमंग दिस. व्हाट इज दिस? हु इज दिस? फेलिंग्स टेस्ट जो आंसर नहीं करता है, दैट मींस हु इज नॉन रिड्यूसिंग हियर. कल भी पढ़ा था सुक्रोज. ओके, दिस इज ए नॉन रिड्यूसिंग, इसको रिडक्शन नहीं कर सकते है ना. रिडक्शन नहीं कर सकते हैं तो फेलिंग्स टेस्ट भी नेगेटिव रहेगा, टॉलरेंस टेस्ट भी नेगेटिव रहेगा. भाई इसके पास तो CHO फ्री CHO नहीं रहता है, बिकॉज यू नो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. तो इसका जो आल्डिहाइड ग्रुप है वो आल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, दैट इज बॉन्डेड, टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. रिंग स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा है. इट इज नॉट फ्री देयर. तो फ्री आल्डिहाइड ग्रुप की एब्सेंस की वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया है. सो यू कैन ऑल्सो से लैक्टोस बीइंग ए डाइसैकेराइड, उसके पास भी फ्री आल्डिहाइड है, तो इसलिए क्या हो गया? इट इज रिड्यूसिंग. ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग. वो याद रखना, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग. ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज. ओके, देन व्हाट fructose में CO group है ना, so that can be counted. So you can say all monosaccharide which are aldose, aldehyde functional group carrying all monosaccharides are reducing sugar. maltose कैसा है? maltose उसमें भी दो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है ना, तो एक ग्लूकोज का aldehyde BC है, दूसरे ग्लूकोज का aldehyde तो फ्री रहता है, so it is reducing. समझा? So कम से कम मिनिमम एक aldehyde ग्रुप फ्री है तो वो रिड्यूसिंग शुगर माना जाता है. ओके, तो फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव रहेगा ये तीनों को, और सुक्रोज को नेगेटिव रहेगा. इसमें क्लियर हो गया ना? इट्स वेरी क्लियर. एंड द आंसर इज सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नोट डाउन करके रखो. रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट Cu2O बना सकते हैं बाकी तीनों को, लैक्टोज, ग्लूकोज, maltose can answer Fellings and tolerance test, but only our sucrose is non-reducing sugar. Okay, very clear. ये आंसर तो जयंत इजीली कर सकते हैं. जयंत, it's your chance. Tell me, sucrose on hydrolysis give what? Sucrose is made up of what?
बीटा डी फ्रक्टोस एंड अल्फा डी फ्रक्टोस, दो फ्रक्टोस से। अल्फा डी ग्लूकोस एंड अल्फा डी फ्रक्टोस, वो जैसा ऑप्शन ही नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोस और अल्फा डी फ्रक्टोस नहीं। फोर्थ वन, ओ बीटा डी फ्रक्टोस, यस, अल्फा डी ग्लूकोस बीटा डी फ्रक्टोस, इज ही करेक्ट? हाँ, सो D sucrose on hydrolysis will give a alpha D glucose and beta D fructose। जल्दी जल्दी बोलना है ऐसे। okay? तो ये देखो, ग्लूकोस, अल्फा डी ग्लूकोस, कैसे अल्फा डी हो गया होगा? OH ग्रुप बिलो, एक्चुअली यहाँ पे ना ये बॉन्ड फॉर्म करने के पहले यहाँ पे OH ग्रुप था, ये H नहीं, एक्चुअली O ग्रुप है। ओके, OH था यहाँ पे, इसके नीचे OH था, एंड इसी OH को दूसरे साइड में जो OH है उसके साथ ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, सो H की जगह पे एक O बॉन्ड आ सकते हैं। दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ओके, बीटा डी फ्रक्टोस वहां पे दिया है, देखो बीटा डी फ्रक्टोस क्यों बोलता है? OH की पोजीशन, फर्स्ट कार्बन की OH की पोजीशन ऊपर है, अबव द रिंग OH है तो बीटा, बिलो द रिंग OH है तो अल्फा, तो ये अल्फा डी ग्लूकोस, तो बीटा डी फ्रक्टोस। वेरी क्लियर, बीच में बॉन्ड हो गया, सो दिस इज सुक्रोस। And why it is non-reducing sugar? Free aldehyde तो दिख ही नहीं रहा है, there is no free aldehyde groups in it, that's it. Now this is a little bit complicated question, so now D-glyceraldehyde, फर्स्ट स्टेप में HCN, एंड यू नो, आई होप यू नो, 1 2 3 लिखा मतलब सब एक साथ नहीं डाल रहे, वन बाय वन डाल रहे। फर्स्ट प्रोडक्ट HCN के साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? फिर उसके बाद उसके अंदर H2O डाला तो इट विल फॉर्म अनदर प्रोडक्ट, उसके साथ इफ यू आर एडिंग HNO3 इट विल फॉर्म अनदर प्रोडक्ट। तुमको ट्राई करके देखते हैं क्या क्या बना रहा है, ठीक है? सो आई विल ट्राई। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले हम, ग्लूकोज या ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्वेश्चन क्या था? ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ठीक है? सो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हम देखेंगे पहले। Glyceraldehyde is actually having 3 carbon only. Glyceraldehyde is having how many carbons? Only 3 carbon. First carbon will be the aldehyde group. Okay. Last carbon will be CH2OH. Second carbon में OH H आ सकते हैं, the position फर्क पड़ता है। मैंने यहाँ पे D plus glucose बोला है, glyceraldehyde बोला है। D plus glyceraldehyde है तो एक ही असिमेट्रिक कार्बन है, एंड उसकी राइट साइड में आएगा OH। D stands for D आइसोमर कैसे बोलता है? असिमेट्रिक कार्बन के राइट साइड में OH आए तो दैट इज D। सो हमारा प्रायर नॉलेज से हमें ऐसे स्ट्रक्चर डिराइव हो पाया, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यही है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें पहले HCN डाला है, क्या डाला है? HCN। तो उसके लिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर 5, उसमें आई थिंक द फर्स्ट वन इटसेल्फ इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो उसमें क्या होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप को मैंने थोड़ा सा इलाबरेट करके लिखता हूँ। C double bond O single bond H, and you know that this carbonyl group is polar due to the difference in electronegativity। कार्बन के पास slight positive charge, ऑक्सीजन के पास slight negative charge आ सकते हैं, and if they are breaking this bond, ऑक्सीजन को नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन को पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। HCN ब्रेक किया तो what you will get, H will be the positive, CN will be the negative। न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या है? न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल का चार्ज नेगेटिव, तो HCN में कौन है न्यूक्लियोफाइल? CN, and I told you this is nucleophilic addition, substitution नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर ही आके बैठना है, तो CN will come and attach to this carbon। क्यों क्यों जयंत, कार्बन के ऊपर क्यों बैठा, ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं गया CN? हाँ, CN नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव के साथ अफिनिटी है, पॉजिटिव इज कार्बन। नाउ इट इज वेरी क्लियर, CN किधर गया? अभी OH H, अभी वो गलती से बोला मैंने ऑलरेडी OH, तो H will come over here। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर एक बार लिखते हैं। दिस इज साइनोहाइड्रिन, राइट? कल भी हमने पढ़ा था साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, अगर NH2OH है तो ऑक्सीन बनाते हैं। ओके, वेरी क्लियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट।
OH H OH ऊपर CN। देखो हमारा साइनोहाइड्रिन बन चुका है। ओके, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी राइट। D है तो OH तो इस साइड में ही आ सकते हैं, दिस आई कांट शिफ्ट। तो क्वेश्चन में D ग्लिसरॉल्डिहाइड का ही रिएक्शन बताया है, सो दिस कार्बन आई कांट टर्न, बट इस कार्बन की रोटेशन तो पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर O इस साइड में है, H राइट साइड में है, तो OH लेफ्ट साइड में आ सकते हैं, H राइट साइड में तो आ सकते हैं। लाइक ऐसे भी हो सकता है ना, इसका मिरर इमेज। दिस इज ऑल्सो साइनोहाइड्रिन, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। फर्स्ट केस में OH राइट साइड में आया, सेकंड केस में फर्स्ट कार्बन की OH लेफ्ट में आया। सो देयर आर चांसेस ऑफ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? टू प्रोडक्ट्स। ओके, एंड ये कार्बन रोटेट नहीं कर सकते बिकॉज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कंपल्सरीली बोला है, सो देयर इज नो अदर चांसेस, ओनली टू प्रोडक्ट्स आर देयर। तो एक आधा आंसर तो हमें मिल चुका है, देयर आर टू आंसर्स, टू प्रोडक्ट्स आर देयर। सेकंड स्टेप में उसमें H2O क्या डालना था, H3O प्लस डालना था। क्वेश्चन क्या था? H2O एंड H प्लस। ओके, सो दोनों में H3O प्लस, H2O स्लैश H प्लस मतलब H3O प्लस डाला। सो क्या हो सकता है? हाँ, CN को, ये हम अमीन्स में पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में पढ़ा है। हाउ कैन वी प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल ग्रुप? CN को COOH में कन्वर्ट करने के लिए बस H3O प्लस की जरूरत है। तो ये CN ग्रुप कंप्लीटली क्या होगा, COOH में, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा वहां से। सो COOH में कन्वर्ट होता है। सो द आंसर विल बी फर्स्ट CN COOH में बदल गया। द सेम कैन हैपन हियर आल्सो राइट। OH H OH H CH2 OH। कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है इन द फर्स्ट कार्बन में। नाउ वन मोर रिएक्शन बताया है ना, थर्ड स्टेप रिएक्शन। व्हाट वाज द थर्ड स्टेप रिएक्शन? HNO3 डालना है। स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बताए, HNO3 स्ट्रॉन्ग। तो अल्कोहल को क्या, ये अल्कोहल को नहीं, ये नीचे वाला अल्कोहल, नीचे वाला अल्कोहल को, फ्री एंड में जो अल्कोहल है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जा सकता है। अगर माइल्ड है तो अल्डिहाइड तक ही जा सकते हैं, है ना, COOH तक लेके जा सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू aldehyde first, aldehyde can oxidize to carboxylic acid, so this is strong, so इसलिए हमें नीचे भी क्या लिख सकते हैं, COOH लिख सकते हैं, ऊपर ऑलरेडी एक COOH है। अभी तुम लोग देखना, ये फर्स्ट प्रोडक्ट का HNO3 वाला रिएक्शन किया तो दिस विल बी द रिएजेंट। इस सेकंड वन का भी है ना, इसको भी क्या कर सकते हैं, यू कैन रिएक्ट। तो COOH COH लेफ्ट में, H राइट में, CH लेफ्ट में, H राइट में, COOH। ये सेकंड प्रोडक्ट रहेगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट रहेगा। वेरी क्लियर राइट। इसका प्रोडक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये, दो प्रोडक्ट मिला। एंड इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकते हो किसको, इसमें एक ही है ना ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें असिमेट्रिक कार्बन है, दिस इज असिमेट्रिक, दिस इज असिमेट्रिक। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज आल्सो असिमेट्रिक, दिस इज आल्सो असिमेट्रिक। सो वी अस्यूम दैट असिमेट्रिक कार्बन है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। asymmetric carbon is one requirement. Second major requirement क्या है, chirality, non superimposable mirror image formula करना चाहिए ना। chirality बोलते हैं उसको, मतलब ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए।
यहाँ पे देखो, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये देखो इसकी, ये इसका ये अगर जैसे मिरर में देखा तो इसी तरह OH लेफ्ट में आएगा, H राइट में आएगा। ओके, सो विच मीन्स दैट इसको इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है। इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है तो वो सुपरइम्पोज नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस इज इनएक्टिव। इसको हम मीसो कंपाउंड बोलता है। व्हाई मीसो? इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है इसको, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसकी वजह से उसका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सो समझा ना, सिमेट्रिक कार्बन होके भी इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको है उसको मीसो कंपाउंड माना जाता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। सो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। ये देखो, इसकी ये हाफ और ये हाफ सेम था, इसलिए मैंने इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला है ना, ट्विन्स की तरह है ना, ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है। लेकिन ऐसा वहां यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, there's nothing like this, you can't draw a line of symmetry over here, so this is optically active. So इससे तुम लोगों को समझा कि प्रोडक्ट दो है, वन प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, वन प्रोडक्ट इज ए मीसो कंपाउंड। अभी हम ऑप्शंस में एक बार रीड करके वापस यहाँ पे आएंगे। ऑप्शंस देखिए, टू ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, रॉन्ग, वन ऑप्टिकली एक्टिव एंड वन मीसो प्रोडक्ट, राइट। बाकी फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड वन मीसो बोला है, यहाँ पे ऑप्टिकली दो इनएक्टिव, वो भी गलत है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी। एंड आई होप ऐसा वाला क्वेश्चन आया तो हम सोच समझ के अलग अलग चैप्टर्स के रिएक्शंस इंटीग्रेट किया है, स्पेशली विद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। उस चैप्टर की रिएक्शन है HCN का और H2O डालने का रिएक्शन। सो यू कैन राइट दिस एंटायर रिएक्शन। अभी लिखो, फाइनली ऐसे कंक्लूड करो, वन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड वन इज मीसो कंपाउंड। नोट डाउन किया, आगे बोलो। यस, दो प्रोडक्ट्स। गैलेक्टोस की स्पेलिंग एक बार ठीक करना, यहाँ पे GAL है।
Another question. Total number of essential amino acid among the given list of amino acids is हाँ essential और non essential पूछ रहे हैं. See, this is one of the confusing topics in amino acid. Essential मतलब what we think body में बनाते हैं या बाहर से चाहिए. हाँ, essential मतलब that we think oh body में अपने आप बनाते हैं, ऐसे हम imagine करते हैं. No, essential means that we require, that is essential through food, diet से मिलना चाहिए. Non essential मतलब वो बॉडी में अपने आप बनाते हैं एंड इट डजंट मीन दैट वो हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. नॉन एसेंशियल भी चाहिए, एसेंशियल भी चाहिए, बट फूड से नहीं चाहिए नॉन एसेंशियल. तो फूड से चाहिए तो एसेंशियल बोलता है. तो अभी एसेंशियल अमीनो एसिड की एक कोड है. तो पहले मैं अमीनो एसिड का लिस्ट लिखता हूँ. लिखो फिनाइललानिन, वालाइन, ट्रिप्टोफान. ओके. थ्रियोनिन, आइसोलूसिन, मेथियोनिन. हिस्टिडिन, अर्जिनिन, लूसिन, लाइसिन. ओके. देखिए फर्स्ट लेटर ले लो. इट्स नॉट द सिंग फर्स्ट. ऐसे समझो कि अभी मैंने जो कोड बना रहा है दैट इज नॉट द सिंगल लेटर कोड, वो मैंने निमोनिक्स के रूप के लिए फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ. नेवर थिंग लाइक ये वाला आइसोल्यूसिन का कोड आई है, थ्रियोनिन का कोड और टायरोफान की ट्रिप्टोफान की कोड मैंने टी लिखना पड़ेगा. दोनों को टी नहीं दे सकते. And so I'm not telling the single letter code. I'm just telling the first letter लेके मैं एक निमोनिक्स बना रहा हूँ. PVT TIM HALL. Private Tim Hall. So it's the name of a hall. Private Tim Hall. तो PVT Tim Hall ऐसे याद रखो. टोटल 4 + 3 + 3 10 अमीनो एसिड्स. 20 अमीनो एसिड में 10 क्या है? ये एसेंशियल अमीनो एसिड का कोड है ना, एसेंशियल है मतलब फूड से चाहिए. सो नाउ इजी हो गया. इसके अलावा बाकी जो 10 है वो नॉन एसेंशियल है. दिस इज हाउ स्मार्ट वर्क हैपेंस. हमको आधा पता है, बाकी आधा फिर क्या रहेगा, नॉन एसेंशियल रहेगा. तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें से एसेंशियल अमीनो एसिड ढूंढ ढूंढ के निकालो. अर्जिनिन है ना, फिनाइललानिन है, अस्पार्टिक एसिड वो नहीं, सिस्टीन वो भी नहीं, हिस्टिडीन हाँ है, वालाइन है, प्रोलिन नहीं है. सो हिस्टिडीन, वालिन, अर्जिनिन, फिनाइललानिन. 4 ना. देखते हैं. हिस्टिडीन, वालिन, अर्जिनिन, फिनाइललानिन. तो ऐसा वाला क्वेश्चन आया तो यू कैन इजीली स्कोर. निमोनिक्स बना के पढ़ो तो इजी रहेगा. ओके. सो प्राइवेट टिम हॉल को भूलना मत. बट यहाँ पे क्या कंफ्यूजन आएगा, ट्रिप्टोफान थ्रियोनिन है, टी से और एक अमीनो एसिड है टायरोसिन. तो गलती से अगर तुम लोग टायरोसिन को ये टी में से एक समझा देन दैट विल बी रॉन्ग. सो ऑलवेज इमेजिन टायरोसिन इज नॉन एसेंशियल. बाकी दो टी से शुरू होने वाला अमीनो एसिड है वो क्या है,
essential है. And proline is non-essential, but P, phenylalanine is essential. तो पढ़ते टाइम में अच्छे से भी पढ़ना है. Okay, never think like जो P से शुरू हो रहा है वो सब essential, जो T से शुरू हो रहा है वो सब essential, ऐसे मत पढ़ो. ठीक है. Now, the following metal ion activate many enzymes, participate in the oxidation of glucose and produce ATP, and with sodium it is responsible for the transmission of nerve signals. Okay. Options: potassium, iron, copper, calcium. Nerve impulse. Bio student, bolo. Which pump? There is a pump called the sodium potassium pump which maintain the resting membrane potential of a nerve. Nerve पता है ना, वो तो जनरल नॉलेज है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं. न्यूरॉन है, न्यूरॉन की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? -70 मिलीवोल्ट. वो -70 मिलीवोल्ट कैसे मेंटेन करते हैं हमारे हर एक न्यूरॉन में? बाई सोडियम पोटासियम पंप. सो सोडियम के साथ कौन सा मेटल वो ट्रांसमिशन के लिए भी मदद कर रहे हैं, एंड दैट इज द मेटल आयन व्हिच activate many other enzymes. So दो फंक्शन पोटासियम को है. योर आंसर इज करेक्ट. आंसर इज पोटासियम. K. So Na के साथ K, potassium, that is working together for activating many enzymes as well as it is helping for transmission of nerve impulses to the neuron. Very easy. Note करके रखो. Nerve impulse transmission plus activation of enzymes, Na and K. Nerve impulse transmission plus activation of enzymes किसका काम है? Na और K. Okay. Potassium activate many enzymes participating in the oxidation of glucose, and it is helping in the transmission of nerve impulse. Already discussed here. Another question: the total number of carbon atoms present in tyrosine, an amino acid, is dash. तो ऐसा वाला क्वेश्चन आया तो we'll be in trouble because हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए. बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक मतलब वो वाला बेसिक नहीं, मिनिमम 2-3 अमीनो एसिड का हमें ऑलरेडी पता है. अगर R ग्रुप H आया तो ग्लाइसिन, R ग्रुप CH3 आया तो अलानिन, R ग्रुप CH3 CH3, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आया तो वाले. ओके. बट अभी आउट ऑफ दैट नॉलेज पूछा है टायरोसिन का स्ट्रक्चर क्या है. ओके. सो एनीवे इसे याद रखो. टायरोसिन इज क्लोजली रिसेंबलिंग वन मोर अमीनो एसिड, उसका नाम है फिनाइलएलानिन. तो उसको एक साथ पढ़ा तो दो हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे पढ़ो. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल स्ट्रक्चर में CH, COH, NH2. ये R ग्रुप चेंज हो रहा है ना. सो इन दिस R ग्रुप यहाँ पे हम अगर CH2 फिर बेंजीन रिंग आ रहा है, CH2 और उसमें बेंजीन रिंग आ रहा है, तो देन दैट विल बी व्हाट? फिनाइल अलानिन. फिनाइल अलानिन. ओके. अगर CH2 बेंजीन रिंग आने के बाद यहाँ पे OH ग्रुप पारा पोजीशन में और एक OH ग्रुप भी आ रहा है, तो देन दैट विल बी आवर टायरोसिन. So you can remember like that, benzene ring रहता है इसमें. So benzene ring containing amino acids है phenylalanine and tyrosin. Tyrosin में benzene ring के पीछे OH भी रहता है, and there is no OH in phenylalanine.
तो आंसर बता सकते हो उसका? इसका नंबर ऑफ कार्बन पूछ रहा है टायरोसिन का। बेंजीन रिंग में तो 6 है, 7, 8, 9. So the answer is 9. 9 कार्बन, both of them. इसमें भी वही है, इसमें भी 9 कार्बन है, उसमें भी 9 कार्बन है. Number of carbon atom is 9. Very clear? Note down किया. The incorrect statement regarding enzymes. ये question Falguni can easily answer, right? Falguni, tell me, enzymes are biocatalysts. True or false? Enzymes are biological catalysts because they speed up body reactions. Okay, that happens inside the body. And they like chemical catalysts. Enzymes reduce the activation energy of bioprocess. Catalyst क्या करते हैं? Activation energy बढ़ाते हैं. अगर रिएक्टेंट यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे जाते हैं विदाउट कैटलिस्ट. अगर विथ कैटलिस्ट है तो एज पर फाल्गुनी उसी भी ऊपर जाना पड़ेगा, तो और डिले होगा, तो नहीं है ना. इट शुड ट्रैवल लाइक दिस. देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम किया है अगर कैटलिस्ट यूज किया तो. सो इससे क्या समझा? कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कराते. ओके, सो इसी तरह क्या एंजाइम्स भी क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कम कराते हैं. सो दिस स्टेटमेंट बोथ ऑफ देम आर ट्रू. हाँ, enzymes are polysaccharides. Are enzymes polysaccharides? Polysaccharide means sugar. नहीं, enzymes are फिर then what? Polysaccharides नहीं है तो then enzymes क्या होता है? Chemically क्या है? कल पढ़ाया था. Enzymes are monosaccharides. उइयो, enzymes are proteins. शुगर से कुछ रिलेशन ही नहीं है एंजाइम्स को, वो याद रखो. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. फिर उसकी प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट. प्रोटीन पार्ट को क्या बोला? अपो एंजाइम बोला. नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोल सकते? कोएंजाइम बोल सकते हैं. इट कैन कोफैक्टर बोल सकते हैं. इट कैन बी कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ट्रांसिएंटली या स्ट्रांगली बाइंड किया है उसके हिसाब से. तो अभी ऐसे सोचो, इसमें प्रोटीन है, enzymes are protein. There is a statement, all enzymes are protein but all proteins are not enzymes. All enzymes are proteins but all proteins are not enzymes. enzyme जो भी है, मतलब एक बहुत इतना प्रोटीन्स है, उसमें से कुछ कुछ प्रोटीन एंजाइम भी रहता है. वेन डायग्राम बोलते हैं ना इसको. So protein is a large category. उसमें से कुछ कुछ प्रोटीन एंजाइम्स रहता है. Okay, and not only protein, enzymes can also be made from RNA. ये एक स्पेशल क्वेश्चन है. मतलब प्रोटीन से भी एंजाइम्स बना सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड से भी एंजाइम बना सकते हैं. आरएनए एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, उसको राइबोजाइम बोलता है. राइबोजाइम, एंजाइम नहीं बोलता है, राइबोजाइम बोलता है. तो ये दिमाग में रखो, आरएनए एंजाइम्स भी रहता है, उसको राइबोजाइम बोलते हैं. बट एनीवे एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स. So they are not polysaccharides. They are proteins. Enzymes are very specific for particular reaction and the substrate. वो भी सही है ना. एक particular enzyme को एक particular substrate ही चाहिए. For example, starch. Digestion process begins in mouth, right? So starch is getting converted into maltose by salivary amylase. ये salivary amylase जो सलेवा में है, उसको प्रोटीन को कुछ नहीं कर सकते. It can't break protein, it can't break fat. It can only convert starch into maltose. So what does it mean? It is specific, है ना. salivary amylase is specific to starch. starch आया तो वो काम करेंगे, starch नहीं तो वो नहीं करेंगे. तो highly specific रहता है substrate. It's like Locan की mechanism पढ़ा होगा ना. एक लॉक से मल्टीपल, एक की से मल्टीपल लॉक खुल सकते हैं. ओके, तो इसी तरह है वन की वन लॉक, इसी तरह वन एंजाइम वन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट रहता ही है. So C is the wrong statement here.
They are complex nitrogenous organic compounds which are product produced by living plants and animals. They are protein molecules. याद रखना बहुत important है. They are proteins. लिख के रखो सब भूल जाएंगे. Enzymes are proteins. Now listen. Coagulation. कल पढ़ाया था डीनेचरेशन की एग्जाम्पल है कोयागुलेशन. मिल्क कोयागुलेट हो गया तो कर्ड बन जाएगा. एग बॉईल किया तो अल्बुमिन का कोयागुलेशन है. एग को फ्राई किया तो भी दैट इज आल्सो कोयागुलेशन. कोयागुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट? आंसर ऑलरेडी बोल चुका है. डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन अनचेंज्ड. अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनचेंज्ड वाला तो वो भी सही हो सकता था. ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑकर्स. पेप्टाइड लिंकेज तो प्राइमरी है, मेन बॉन्ड है, वो तो ब्रेक नहीं होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयोनिक बॉन्ड, ये सब कुछ ब्रेक होगा, लेकिन प्रोटीन कोवेलेंट बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड कुछ नहीं कर सकते. We can't even touch that amide bond by heating. Then breaking of the peptide linkage in the primary structure. Oh, अभी बोला. Biological property of protein remain unchanged. Protein inactive हो जाएगा अगर denature हुआ तो. So only option that is seeming to be correct is denaturation of protein occurs. On heating, denaturation of protein occurs, which result in the coagulation of egg. अయ్యో बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अपने आप सोचो, अपने आप रीड करो. आई विल आस्क टू एवरीवन ABCD का ऑप्शन क्या है वो बोलना पड़ेगा. See, it is NEET 2023. Simple question. इसकी स्ट्रक्चर सोचो. Nucleotide are made up of three things. Which are they? Nitrogen base, endose sugar, phosphate group. So if I am the endose sugar, फर्स्ट कार्बन, पेंटोस का शुगर में कितना कार्बन है? 5 कार्बन है. फर्स्ट कार्बन में कौन रहता है? फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड, राइट. फिफ्थ कार्बन, ये मान लो ये फिफ्थ कार्बन है. फिफ्थ कार्बन में कौन अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. सो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप. फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजन बेस, फिफ्थ कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप. अब ये पढ़ो. असर्शन सही है या गलत है? जयंत गलत. अभी तो बोला मैं नाइट्रोजन बेस अटैच्ड टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द शुगर, बेस अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन. नाइट्रोजन बेस की पेंटोस शुगर है ना, तो पेंटोस शुगर में यहाँ पे इफ दिस इज द फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे रहेगा बेस. दिख नहीं रहा है, ठीक है अभी देख.
See, base is attached to the first carbon and phosphate group किधर attach होना पड़ेगा? फिफ्थ कार्बन में अटैच होना पड़ेगा. तो assertion is true. तो reason में क्या है देखते हैं. When nucleoside is what is nucleoside? This much part is called a nucleoside. वो पता था? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, बस ये दो कंपोनेंट्स को मिलके न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं. एंड न्यूक्लियोसाइड की फिफ्थ पोजीशन में PO4 3- आया तो इट इज न्यूक्लियोटाइड. सो बस ऐसे बोलो, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड. दैट इज द इक्वेशन. सो वो पढ़ो. When nucleoside is linked to phosphorus acid at the fifth position of the sugar moiety, we get nucleotide. फिफ्थ पोजीशन में फॉस्फोरस ग्रुप आया तो न्यूक्लियोटाइड बोला. इसमें एक सिंगल वर्ड इज द प्रॉब्लम. फॉस्फोरस. फॉस्फेट लिखा तो भी चाहिए, सही है. PO4 3- मीनिंग PO4 3-. फॉस्फेट क्या है? PO4 3-. फॉस्फोरिक लिखा तो भी सही है, बिकॉज फॉस्फोरिक एसिड क्या है? फॉस्फोरिक. H3PO4L फॉस्फोरिक एसिड. नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3. नाइट्रस एसिड क्या है? HNO2. एक ऑक्सीजन कम में तो अस, नाइट्रस. तो इसी तरह फॉस्फोरस क्या रहेगा? फॉस्फोरस H3PO3. इसके पास तीन ही ऑक्सीजन है. सो फॉस्फोरस से बन सकते हैं क्या? नहीं, फॉस्फोरिक या फॉस्फेट उससे बन सकते, बिकॉज फॉस्फोरिक में फॉस्फेट ग्रुप तो रहता है. समझा? हाँ, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया. रीजन इज रॉन्ग, assertion is true. B. B. Base link with the first position sugar in nucleoside. मतलब फर्स्ट पोजीशन में बेस आ सकते हैं. बेस विल कम टू द फर्स्ट पोजीशन. देन यहाँ पे इन द फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ फिफ्थ ग्रुप यही है ना. फिफ्थ पोजीशन में फॉस्फोरिक, रस नहीं रिक, फॉस्फोरिक एसिड बॉन्ड हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दिस सिली रीजन वो रीजन गलत हो गया. समझा? याद करो. So if you want, you can write this statement in your notebook. When nucleoside is linked to phosphoric acid at the 5' end of sugar moiety, it forms phosphonucleotide. Deoxyribonucleic acid. Pre-medical test. नीट आने के पहले जो एग्जाम था उसको बोलते थे. ओके.
2016 तक हुआ था पीएमटी, 2017 से नीट। ओके हाँ हाँ, the number of tripeptides formed by 3 different amino acid using each amino acid once, math students can easily answer this। ये लॉजिक क्या है कि यू नो अमीनो एसिड्स, 3 अमीनो एसिड मिला तो उसको क्या बोल सकते हैं, ट्राई पेप्टाइड बोल सकते हैं। let it be any amino acid, I'm taking glycine, alanine, valine। ओके, इसको अरेंज करके कितना अमीनो एसिड टोटल, कितना ट्राइपेप्टाइड टोटल बना सकते हैं। अभी देखो ग्लाइसिन को मैंने पहले बिठाया, ग्लाइसिन को इधर आ सकते हैं, ग्लाइसिन को इधर भी आ सकते हैं। वेरी गुड। तो इसको कैसे फाइंड आउट करें, अभी इसी था, ओनली 3 ट्राइपेप्टाइड बोला, अगर नंबर से ज्यादा है तो फिर क्या करोगे, दैट्स द थिंग। तो उसके लिए मतलब सिंपल क्वेश्चन लॉजिक ये है कि मेरे पास अभी ऐसा ऐसा देखो 3 पैंट्स है, 2 शर्ट है, एक कैप है, तो कितने दिन मुझे ऑल्टर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में पेयर कर सकते हैं। वो मैथ्स की जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर से आया हुआ है। हाँ, फैक्टोरियल बराबर। तो इसको 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 3, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 1, मतलब मल्टीप्लाई करना 3 2 1, उसके पीछे की जो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना 3 into 2 into 1। तो वेरी गुड। ओके, सो 6 टाइप ऑफ अलग अलग ट्राइपेप्टाइड इसमें पॉसिबल है। तो अभी आगे 5 पूछा या 10 पूछा या 15 पूछा, यू कैन इजिली आंसर फैक्टोरियल करके। ओके, सो एक क्वेश्चन लिखो, उसके साथ आंसर भी लिखो, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लिख के रखो आंसर। ये डायरेक्टली आंसर लिखा तो भी चलेगा। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए शुगर कॉल्ड एक्स, नीट में पूछा वो भी 25। अभी देखो इजी क्वेश्चंस भी पूछता है, यू ऑल कैन आंसर दिस इजीली, आई एम 100%। इट इज फाउंड इन हनी। ओके, इट इज अ कीटो शुगर। अभी तो आंसर आया होगा, अभी आंसर आया है दिमाग में। कीटोस, सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप रहता है। हाँ, फिर भी एक्सिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म, उससे कुछ ज्यादा हिंट नहीं मिलने वाला, बिकॉज ग्लूकोज भी उसमें एक्सिस्ट कर सकते हैं। देन लीवो रोटेटरी, इसमें तो मेरा फ्रैक्टोस है ना, because I told you that glucose is dextrorotatory, fructose is levorotatory, so this is a key point। ये आंसर से भी और ये आंसर से भी यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द एक्सेस हु फ्रैक्टोस। ओके, सो यू वांट यू कैन नोट डाउन फ्रैक्टोस, 4 पॉइंट्स लिखो ऐसे, हनी, कीटो शुगर, लीवो, सिंपल नोट डाउन करो। फ्रैक्टोस लिख के 3 पॉइंट्स लिखो, आरो मार्क डाल के। नंबर 1 लीवो रोटेटरी, कीटो शुगर, हनी। और 2 क्वेश्चंस आगे कर सकते हैं। हो गया, देखो डी फ्रक्टोस इज ए कीटोस शुगर, इट exists in alpha beta anomeric form, it is levorotatory, it is found in honey। Now comes the question, type of amino acid that are obtained by hydrolysis of protein। देखते हैं अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर कैसा है, फिर से लिख रहा हूं मैं, COOH NH2H, यहाँ पे क्या है R ग्रुप। इसमें COOH ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप अटैच किया हुआ कार्बन A है ना। हाँ, so all amino acid are alpha amino acid,
प्रोटीन के लिए जो अमीनो एसिड बनता है ऑल आर अल्फा अमीनो, बिकॉज अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच ही रहता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही है। तो ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ओके, यस, सो द आंसर इज अल्फा। नोट डाउन कर सकते हैं, आंसर नोट डाउन करो, ऑल प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। Next question is a little bit complicated question. The nucleic acid that having two possible binding sites. Base, actually 4 bases, आरएनए का पकड़ा तो 5 आ जाएगा, डीएनए में 4 बेसिस तो होता ही है, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। पहले ये कैटेगराइज करके पता है इसमें प्यूरिन कौन है, पिरिमिडिन कौन है। दिख रहा है? Nitrogen base can be categorized into two: purine, pyrimidines. Purine ring जिसमें होता है that is known as purines. Okay. pyrimidine ring जिसमें होता है वो सिंगल हेक्सागन रहेगा, pyrimidine ring है तो that is pyrimidines. So purine ring is actually like hexagon or pentagon, वो ring आता है purine ring. Okay. So purine ring में adenine, guanine, pyrimidines में thymine, cytosine, and RNA है तो यूरासिल। So प्यूरिन्स कौन है, पिरामिडिन्स कौन है, वो क्लियरली समझा होगा। अभी इसमें पूछा है क्या, प्यूरिन पिरामिडिन कौन है वो नहीं पूछा, दे आर आस्किंग टू पॉसिबल बाइंडिंग साइट किसको होता है। शुगर इज अटैच, शुगर की कौन सा कार्बन अटैच होता है बेस में, शुगर की कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, फिफ्थ कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर की फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस को शुगर में दो जगह पे अटैच हो सकता है, एक नाइट्रोजन बेस को शुगर, इट हैज टू बाइंडिंग साइट। सो वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग, बट अभी के लिए आंसर, इसका आंसर क्या है, द आंसर विल बी ग्वानिन। ग्वानिन का स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। ओके, ग्वानिन का स्ट्रक्चर में मैं बोला जैसे उसमें हेक्सागन रिंग है, यहाँ पे NH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे जो नाइट्रोजन, यहाँ पे NH, and attaching to this there is a NH double bond O नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है NH2। Attaching to this will be a pentagon, NR, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन रहता है। सो इन शॉर्ट बताया तो दिस टू नाइट्रोजन्स, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसलिए
दो साइट, दो बाइंडिंग साइट्स आर देयर, मतलब शुगर की वो फर्स्ट कार्बन में इससे भी जुड़ सकते, इससे भी जुड़ सकते. So this is the only nitrogen base that has the two different binding sites. तो वो नोट करके रखना, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो. guanine, ये आंसर लिख के एक्चुअली क्वेश्चन अलग. अभी लिखो, दिस वन, दिस वन. There are two binding sites for guanine. Continue. Which of the following is the correct structure of L-glucose? वो समझने के लिए ना एक्चुअली ग्लूकोज की स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करो. डी ग्लूकोज हम ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, 1 2 3 4 5 6 CH2OH. ऊपर क्या आएगा फाल्गुनी? CHO. और सेकंड कार्बन में क्या आएगा जयंत? HOH. यहाँ पे OH, H, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH. वेरी क्लियर. ओके, इसको सब एंटायरली इसका मिरर इमेज ले लो, सबको ऐसे टर्न करो, so that you will get what? L glucose. So this is D plus glucose. Now you are going to write L minus glucose. अगर D plus है तो L वाला नेगेटिव रहेगा ना, तो L नेगेटिव ग्लूकोज बनाने के लिए जा रहे हैं. CHO कुछ चेंज नहीं. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 CH2OH. देखिए, टर्न OH H, टर्न H OH, टर्न OH H, टर्न OH H. तब लेफ्ट में 3 OH आएगा, थर्ड कार्बन की OH राइट में. बस. ओके, देखते हैं किसका स्ट्रक्चर है वैसे. लेफ्ट में 3 OH और थर्ड कार्बन की OH राइट में है ना. फर्स्ट वन में देखो, H है यहाँ पे, बट दैट वी डोंट राइट. ये है ना L माइनस ग्लूकोज. समझा अच्छे से? वेरी गुड. If you want, you can draw the structure of D का opposite L glucose. Otherwise, if you know, then let's move on to the next question. Mayuresh, आंसर करो. ये प्रोटीन है क्या? थोड़ा बायोलॉजी पढ़ने का जरूरत तो है यार. Okay, so we can say nail formation, keratin. एनिमल्स की नेल क्लॉस, क्लॉस रहता है ना दूसरे एनिमल्स को, वो. देन हेयर, ये सब कुछ केराटिन से बनाया है. ओके, प्रोटीन. देन स्किन फॉर्मेशन, मेलानिन. स्किन में एक्चुअली पिगमेंटेशन के लिए भी चाहिए, प्रोटीन है ना. मसल फॉर्मेशन, मसल प्रोटीन्स आर फाल्गुनी, मसल प्रोटीन.
स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी इसी साल पढ़ा ना, नहीं आया गया, लास्ट ईयर का है, 11th का टॉपिक है। एक्टिन, मायोसिन, प्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, these are muscle protein. So muscles are also, muscles are all made up of protein only. Okay, that even common people will know. So you can see nail, skin, muscle, everything are made up of protein. Then the answer is providing energy for metabolism. This is not the role of protein. Energy banana पहले किसका काम है? Which biomolecule is very essential for making energy, Falguni? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी कहाँ से मिलेगा? 38 एटीपी हमें किसको ऑक्सीडाइज मिलाता है? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज इसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड किसमें आते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, वही तो पढ़ा रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, व्हिच मींस दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड चॉइस लिपिड्स रहता है, फैट। थर्ड चॉइस है प्रोटीन, इसको प्रोवाइड कर सकते हैं बट इट इज वेरी वेरी वर्स्ट कंडीशन, जैसे वो इंसान के बॉडी में फैट बिल्कुल भी बचा नहीं एंड वो बहुत हफ्तों से खाना भी नहीं खाया, ऐसा वाला सिचुएशन में फिर प्रोटीन यूज होना शुरू करते हैं। सो बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट, सेकंड चॉइस लिपिड, थर्ड चॉइस प्रोटीन। सो थर्ड चॉइस है तो इसलिए इसको वी कांट डिपेंड इट ऑन ऑलवेज, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। लिखो, लिख के रखो, ये आंसर लिखना ही है। ऐसे लिखो कि प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स मेक अप nails, skin, muscle, but it doesn't provide energy. Okay. Now, this question we require more time, so we'll discuss this one first. This is a simple question. This is the last question for today. Glycolysis क्या होता है? And it is I'll asking for biology part also. Glycolysis हमारी सेल के अंदर एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। होप यू नो द एंटायर स्टोरी। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर anaerobic है, वो anaerobically oxidized to form pyruvic acid। ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस जाएगा। दिस माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक CO2, H2O, ATP। This is only one fate of pyruvic acid। पायरुविक एसिड को और भी फेट्स रहता है, कौन सा फेट? अगर इफ इट इज एन ईस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो एरोबिक चलेगा ना, एरोबिक, एयर की प्रेजेंस चाहिए। ईस्ट इज अनेरोबिक ऑर्गेनिज्म दैट यू नो। सो ईस्ट में है तो CO2 एथेनॉल प्लस ATP में कन्वर्ट होता है। वेरी क्लियर। अगर lack of oxygen like in muscle cell, RBC मसल जैसे lack of oxygen, बहुत देर से मसल काम कर रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो गया। ऑक्सीजन डिप्राइव्ड कंडीशन में वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं विच इज 3 कार्बन शुगर। इस बार स्टेट बोर्ड CBSE 10th में ये सवाल पूछा था कि अनेरोबिकली मसल में 3 कार्बन कॉम्पाउंड बनता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? लैक्टिक एसिड बनता है ऐसा नहीं पूछा, 3 कार्बन पूछा। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वो बन रहा है प्लस ATP।
सो वो बेसिक क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड से ही हम पढ़ रहे हैं ये चीज। सो यहाँ पे क्या पूछा है, इतना वाला पोर्शन ही पूछा है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। एंड ये वाला पोर्शन को क्रब्स साइकिल बोलता है, क्रब्स साइकिल। एंड ये वाला पोर्शन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलता है, ये वाला पोर्शन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलता है। सो वी कैन से फर्मेंटेशन, ये भी एक फर्मेंटेशन है, ये भी एक फर्मेंटेशन। सो दिस ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, see, so first stage in oxidation of glucose, it is an anaerobic process and involves an anaerobic बोला ना, involves the degradation of glucose into two molecules of pyruvate। मतलब एक ग्लूकोज से कितना, ग्लूकोज इज हैविंग 6 कार्बन राइट, 6 से कितना 3 कार्बन बन सकते हैं, 2 3 कार्बन, बिकॉज़ पायरुवेट इज 3 कार्बन, सो वी कैन मेक इट 2 3 कार्बन कंपाउंड्स, 2 पायरुवेट फ्रॉम 1 ग्लूकोज। पायरुवेट को आगे जाके एटीपी बनाने के लिए यूज भी कर सकते हैं। सो विद दिस वी कैन वाइंड अप टुडेस क्लास। समझा अच्छे से?